Good afternoon and welcome to Dr. Speak. I'm Amritpal Singh. With me is my colleague Lal Chandra Singh. Over the next 1 hour, we'll have a panel of experts joining us, and you can call in on the numbers we'll be flashing on at the bottom of our screens. You can ask your questions directly to the doctors, but keep your questions related to COVID, because this program that we're running is especially on the coronavirus. Any queries that you may have about that, you can speak directly to our doctors. And also, Lal Chandra, we put that on our Facebook page. जी बिल्कुल You can go to our Facebook page, which my colleague will tell you about. जी नमस्कार। तो आप ये डॉक्टर स्पीक देख रहे हैं, जो कि आप हर रोज़ डीडी न्यूज़ पर देखते हैं, और ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर आपके लिए और कोविड महामारी जो है उसके मद्देनज़र लाया गया है, जिसमें कि आप अपनी कोई भी शंका हो, कोई भी सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। और पूछने का दो ज़रिया है। एक ज़रिया तो ये है कि आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं, और दूसरा ज़रिया ये है कि आप फेसबुक पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, डीडी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर, और वहाँ पर अपने सवाल लिखिए। हम आपके सवाल आप अपने डॉक्टर्स से लेंगे, और हमारे डॉक्टर्स विशेषज्ञ मेहमान जुड़ेंगे हमसे, उनसे आपके सवालों के जवाब लेंगे। तो आप लगातार अपने सवाल पूछ सकते हैं। यस अमृतपाल। We will be dealing with the various aspects about COVID. Remember, the pandemic is not over yet. The governments, state governments have begun the process of unlocking, and many restrictions have been lifted, relaxations have been given, but it becomes even more incumbent upon us to follow the COVID protocols, to maintain social distancing, not stepping out of our homes unless absolutely necessary. And if we indeed do have to step out of our homes, wear the mask always, and most importantly, get yourself vaccinated if you're eligible. Now, Lal Chandra, the government has liberalized the new regime of COVID has come in. The vaccination has come in. In this liberalized policy, you don't need to really book your slot. You can walk into any center, go there, they'll register you on COVID and give you the jab free of cost for everybody above 18 years. But you also have the option of going to private hospitals, where they will charge you a certain amount. There are amounts decided for different vaccines, and a maximum of 150 rupees as service charge, where you can get yourselves vaccinated. So please get vaccinated, because there's an ambitious target to get all or most of the population, or most of the adult population vaccinated, because unless everybody is safe, nobody is safe. जी बिल्कुल। और ये वैक्सीनेशन को लेकर के ये बात कुछ उत्साहजनक भी है कि पिछले 2 दिनों में अमृतपाल जी जिस तरह की वैक्सीन लोगों ने ली है, और जिस तरह से टीकाकरण का काम आगे बढ़ा है, वो अपने आप में आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। और एक और बहुत ही दिलचस्प बात है कि जो देहाती इलाके हैं, जो रूरल इंडिया है, वहाँ पर वैक्सीन लेने वाले पिछले 2 दिनों में ज़्यादा हैं शहरी इलाकों के मुकाबले। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये देश के लिए चिंता की बात थी कि देहाती इलाकों में इसका प्रसार ज़्यादा ना हो कोरोना का, और वहाँ पर अगर टीकाकरण बिल्कुल मुकम्मल तरीके से चले तो कोविड से हम मुकाबला करके और कोविड को हरा करके और जीत सकते हैं। तो ये उसी की कोशिश है। हम लगातार आपके सवालों को लेंगे, और हमारे डॉक्टर विशेषज्ञ इस पर आपको जवाब भी देंगे। थोड़ी ही देर में हमारे डॉक्टर विशेषज्ञ हमसे जुड़ने वाले हैं। Okay, let me introduce our panel of experts. My producer tells me that our experts have joined us. We have Dr. A.K. Vashane. He's professor of medicine at the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital in Delhi. We have with us Professor Dhruv Chaudhary. He's the head of the pulmonary and critical care medicine at PGI Rohtak, and he's also the state nodal officer for COVID-19 in the state of Haryana. And also we have Dr. Sanjeev Kumar, who is the nodal officer for COVID-19 and works at AIIMS, Patna. All three gentlemen, many thanks for joining us, and let's begin with you, Professor Vashane.
Professor Varshney, now that the liberalized regime of vaccination, those categorizations about 18 plus or 45 and above or 60 and above has gone in, people can walk in into the vaccination centers and get themselves vaccinated. As Lalchandra was saying, a lot of people indeed are turning up. We set a world record of sorts when this was opened day before. How big is the challenge to sustain this momentum? Good afternoon to everybody, to all our viewers and yourself. And definitely, as we have learned for the last 1 year, that vaccination is the only way by which we can prevent the disease from the spread. Otherwise, COVID-appropriate behavior we have to deploy till the sufficient vaccination coverage is. And we have a very large country of 135 crore, and the person who are eligible at the moment is more than 100 crore. So it is a big task, big challenge to the government to inoculate, to vaccinate all those persons. But definitely we are progressing very well. More and more vaccines are being added. At the moment, Covishield and Covaxin is available. Third Russian vaccine, Sputnik, is also coming and in the approval stage and will come in a fortnight or so. So definitely large number of the vaccination is required, and that is the only. And it is progressing, I think, in the right way. जी डॉक्टर संजीव कुमार, हम अपने दर्शकों के सवाल लेंगे, लेकिन क्योंकि आप एम्स पटना से हैं तो एक सवाल जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा है, वो सवाल ये रहा है कि वहाँ पर एम्स पटना ने बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल किया है। हम चाहते हैं, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, तो बताएं कि इस मामले में अभी तक क्या प्रोग्रेस है और कब तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश में बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही। अभी चूंकि हम सब जानते हैं कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं दी गई क्योंकि उन पर कोई ट्रायल नहीं हुआ था जी। और अभी जैसा कि हम सब अंदेशा है कि थर्ड फेज अगर आता है उसमें बच्चों के संक्रमण की संभावनाएं हैं। उनको वैक्सीन देने के लिए कोवैक्सीन की ट्रायल पटना में, एम्स पटना सहित देश के करीब 11 सेंटर में किया जा रहा है। चूंकि हमारा अनुभव है, पहले से हमने कोवैक्सीन की ट्रायल की थी एडल्ट्स में, तो इसलिए अभी बच्चों को हमने रिक्रूट किया जी। पहले 12 से 18 साल, फिर दूसरे फेज में 6 से 12 साल, और अब 2 से 6 साल के बच्चों को बच्चों जो वॉलेंटियर बच्चे अपने माँ बाप के साथ आते हैं, जो अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे वॉलेंटियर करें, उनको हम फिजिकली एसेस करते हैं। हमारे पीडियाट्रिशियन उनको देखते हैं कि ही इज फिट, तो उनके RT-PCR टेस्ट करते हैं। अगर कोरोना का संक्रमण उनमें पहले से नहीं हुआ है तो उसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट भी करते हैं। अगर इस तीनों असेसमेंट में वो सही निकलते हैं, फिट और ट्रायल है, तो उनको हम ट्रायल में लेते हैं। ट्रायल में ये चीज है कि आधे बच्चों को वैक्सीन, एक्चुअल वैक्सीन की डोज पड़ेगी और आधे बच्चों को प्लेसिबो पड़ेगी, मतलब कि उसमें दवा नहीं हो। इस तरह से हमने फर्स्ट 2 फेज में 12 से 18 साल के बच्चों का और 6 से 12 साल बच्चों का ट्रायल जितनी जरूरत थी, पहले फेज में 28 बच्चों का, उसके बाद 22 बच्चों का हमने ट्रायल कर लिया। अब आज से 6 से 12 साल 2 से 6 साल के बच्चों का भी करेंगे, और इन सारे के डेटा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में जाएगी। वहाँ एनालिसिस होगी कि अगर ये इफेक्टिव है बच्चों में भी, तो जल्दी ही 2 महीने के अंदर उम्मीद करते हैं कि बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है कि जल्दी ही वैक्सीन आ जाएगी बच्चों के लिए भी। Professor Dhruv Chaudhary, Lalchandra, my colleague, was saying that statistics suggest that earlier when we saw the rural population wasn't very enthusiastic, but that trend is reversing about vaccination. You are the nodal officer for the state of Haryana. Give us a sense of what is your experience, what about the vaccine hesitancy that we saw earlier, and how is that being overcome? Are attitudes of people changing, or is the rural population still believing what the popular WhatsApp university tells them?
Thank you and good afternoon, everybody. You see, in Haryana, we have initially, you are very right that initially we had picked up very slowly, but now we have now vaccinated. I will first talk about the whole state as such. Nearly, we are around about 2 crores and 75 lakh in the population. Already nearly, I can say so, 1/3 is vaccinated right now. And 70 lakhs plus, that is the data which is there with us till 20th of June. 70 lakhs, 32,228 is the number, if I can say so. We are nearly 1/3, we are doing it. If we remove the children, probably the percentage will go a little high. One, it includes both the frontline workers, people in the cities as well as in the rural areas. Now, the second wave, the way it has devastated, people actually, I will say, got scared also, got alarmed also. When we used to talk about asking people about the vaccination, they used to say, okay, we'll sit, we will look, we will do it. And in the rural area, there was no acceptance. But now, it has now penetrated into the rural areas. So there has been an acceptance, and there has been a very concerted effort by the Department of Health of the government, which has actually started making visible now. And in Haryana, we did a very unique program where probably more than 1 crore 88 lakhs, if you look at from the 2 crore 70, nearly more than 2/3 of the population in the villages which was there was screened. And all those people who had ILR, that is the upper respiratory infections or influenza-like illnesses, they were looked into, checked into. So that shows the commitment of the government, and that has made a difference on the people. So when they are seeing it, that this disease is no longer a disease of cities, so the vaccine hesitancy which was there and which people were thinking, I think that has gone away. The only thing we now need to ensure is that we are having adequate stocks and we are able to reach nook and corner. We are very hopeful that we shall be able to achieve our targets quickly. And one of the major reasons has been really across picking up more than anything has been the after effects of the effects of the second wave. जी अमृत, फेसबुक पर कुछ सवाल आ गए हैं, तो हम सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। आगे फिर अपने डॉक्टर विशेषज्ञ मेहमानों से बात करेंगे और ख़ासतौर पर डेल्टा प्लस के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे कि अभी हालांकि कुछ ही केस भारत में हैं, लेकिन कितना सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल सवालों के सिलसिले को शुरुआत करते हैं। हीरालाल जी फेसबुक पर सवाल पूछ रहे हैं कि कोविड-19 से 21 अप्रैल को वो फाइनली नेगेटिव हो गए हैं, 21 अप्रैल को, और नहीं, नेगेटिव रिपोर्ट उनकी 30 अप्रैल को आई है, 30 अप्रैल को। तो उनको वैक्सीन कब लेनी चाहिए? हालांकि इसमें हमारी जो जानकारी है वो 3 महीने का होना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रोफेसर वार्ष्णेय, आपसे जानना चाहूँगा और आप इनके सवालों का मुझे लगता है कि जवाब बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं कि क्या वही 3 महीना है या उसमें कुछ बदलाव है अभी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो जो आपका वैक्सीनेशन है वो 3 महीने के बाद होगा। 3 महीने के बाद ही वैक्सीन, जो अभी गाइडलाइंस। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दें डॉक्टर वार्ष्णेय कि ये 3 महीने तो कम से कम है, और कितने दिनों तक ले लेना अच्छा रहेगा? ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों के अंदर ले लेना चाहिए? अभी देखिए, इसका जो है जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है, नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है जी, और ये माना जाता है कि भी एंटीबॉडी जो है वो कितने समय तक रहेंगी, इस पे अभी अध्ययन चल रहा है। ये 6 महीने भी रह सकती हैं, 9 महीने भी रह सकती हैं, साल भर भी रह सकती हैं, और लंबे भी रह सकती हैं, परंतु कम से कम 3 महीने जरूर हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि उस समय तक आप प्रोटेक्टेड हैं। क्योंकि देखिए, वैक्सीन को अभी जो है ना, जिस तरीके से वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, उसके हिसाब से हमको यूज करना है। तो इसलिए ये गाइडलाइन बनाई गई कि अगर हम उनको 3 महीने के बाद दें तो वो रीजनेबल होगा। हालांकि ऐसा अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो 1 महीने के बाद ही वैक्सीन दी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम। ओके, प्रोफेसर चौधरी, I wanted to ask you about whether, if somebody gets COVID, why does he need a vaccine after that? Isn't natural infection, the immunity developed by natural infection, more viable than an artificial, infection which is induced through the vaccine and then you develop immunity?
See, it's a very important question you have put in. In fact, that is being debated, and there is no definitive answer still yet come up. Certain infections like tetanus, you will see, we get far more better immunity after giving vaccination. After tetanus, one may not get it. There are certain other diseases also, but nevertheless, as far as the COVID is concerned, you see, it is a new disease, it is evolving. Nobody knows anything about it, but looking at the data which is coming up, if I go by the Public Health England, they say the reinfection rates are not more than 10%. When they have been following the more than 20,000 people, the data which is in the public domain. So it raises a very, very important question that the persons who have been actually clinical symptomatic COVID, do they need to have it? And if you ask my personal opinion, I think I am of the, whatever the information, knowledge, or idea I have about it is that probably they may not need it. And if anything which is needed or required may be a booster dose. But nevertheless, as of now, across the board, throughout the world, still this is a convention that keep on vaccinating because disease period is now not more than 18 months or so. So people still don't know other diseases which we have seen over a period of extended time. But whatever the data we are seeing and the way the second wave has happened, we have not seen too much of a difference in the people who had been vaccinated or people who had the symptomatic disease in the past to get the symptoms. At least at a personal level, I feel probably they are well immunized. And if there is a variation, yes, some breakthrough will happen, but nevertheless, the body will itself take it up. The only question is will be up in terms of asymptomatic people which we are detecting. That still will remain a question mark. Okay. एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, रेवाड़ी से मामचंद जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मामचंद जी आपका, और आप पूछिए अपने सवाल। मामचंद जी, एक रिक्वेस्ट है, अपना टेलीविजन सेट का आप वॉल्यूम डाउन कर दें, फिर आपका हमारे से वार्तालाप थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। चलें, पूछिए जी सवाल। I think Mamchand ji cannot hear us. We'll try and reconnect with him in a little while. इस बीच फेसबुक पर एक सवाल जी प्लीज। सौबिक रॉय पूछते हैं कि कोवैक्सीन का दूसरा डोज जैसे कि हम जानते हैं कि 4 हफ्ते का है, लेकिन 4 हफ्ते बाद ना लेकर के उन्होंने दूसरा डोज 8 हफ्ते बाद लिया है। तो डॉक्टर संजीव कुमार, कोवैक्सीन का अगर डोज 4 हफ्ते में नहीं लेकर के 8 हफ्ते बाद लिया है, तो वो जानना चाहते हैं इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सर, इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड बेस भी कर दूं, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड, इफ समबडी हैज not taken the second dose within the stipulated time, does it mean, will it affect the efficacy of the vaccine, or the effect in terms of immunity that it produces? Does it mean that it goes nil? If you could please explain that in detail. देखिए, कोई भी वैक्सीन होती है जी, जैसे कि हमारी ये कोविड की वैक्सीन है, ये बॉडी में जब हम इंजेक्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाती है। इसका काम एंटीबॉडीज बनाना है, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना है और वो एंटीबॉडी बनाएगी। इसको बनने में कुछ वक्त लगता है क्योंकि एक्टिव, एक तरह से ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। तो जब हम पहला डोज देते हैं तो अगेंस्ट में एंटीबॉडी बननी शुरू होती है। एक स्टेज पर आती है जब उस डोज के अनुसार मैक्सिमम क्षमता होती है एंटीबॉडी बनाने की। उसी समय इस प्रॉपर्टी है इस वैक्सीन की कि हम दोबारा दूसरा डोज दें। उससे क्या होगा कि जो ये इफेक्ट है वो मैक्स और अच्छी तरह से और मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा दूसरे डोज से, और जो एंटीबॉडीज की मात्रा है दैट इज सफिशिएंट इनफ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस वायरस। मतलब मात्रा से ज्यादा कि हमारे शरीर के लिए, किसी व्यक्ति के शरीर के लिए कितनी एंटीबॉडी की जरूरत है उसको रक्षा करने के लिए, वो बनती है। और वो जो ट्रायल में देखा गया है या जो इसकी स्टडी हुई है कि वो उसकी ग्राफ धीरे धीरे बढ़ती है और दूसरी डोज देने के बाद और बढ़ती है और एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंचती है। फिर एक प्लेटू आता है और कुछ देर के बाद एक कम होना शुरू होता है। अभी तक का जो ये है कि दूसरी डोज जब पड़ेगी
तो उसके बाद से जो एंटीबॉडी बनेगी वो कम से कम 8 महीने से लेके 1 साल तक, विभिन्न तरह के रिपोर्ट आए हैं, बड़ी स्टडी आई है, लेकिन आमतौर पर मैं बताता हूँ कि 8 महीने से लेके 1 साल तक उतनी रहेगी कि आपके शरीर में इस एंटीबॉडीज के अगेंस्ट सुरक्षा करेगी। अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसको सीवियर होने से रोकेगी। जी। तो आइडियल टाइम यही है कि फर्स्ट डोज लिया कोवैक्सीन के बारे में, उसका दूसरा डोज 4 हफ्ते मैंने 4 वीक से 6 वीक तक के बीच में ली, सो दैट कि जो उसके बनने की प्रक्रिया है वो और मैक्सिमम लेवल पहुंचे और सुरक्षा करे। अगर आप नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे नहीं लेंगे तो इस से इंटरफेयर करेंगे, और जो इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ है और वो मैक्सिमम उस लेवल पर जाएगा, अगर दूसरा डोज नहीं मिलेगा तो उसमें कुछ कमी आएगी, कमजोरी आएगी। जी, तो इसलिए आइडियल है कि आप टाइम पर ही लें, लेकिन अगर किसी कारण से छूट गया है तो भी जब भी आपको उपलब्ध हो, जब भी हो, तो दूसरा डोज जरूर ले लें, भले ही थोड़ी देर हो जाए। तो बिल्कुल इसका नतीजा ये May निकलता I है। add here, if you permit me? You see, the confusion has come up because of the variation in the timing of Covishield. जब 4 हफ्ते का दोनों का था कोई दिक्कत नहीं थी, जब से वो कोविशील्ड का टाइम के इंटरवल्स हुए हैं तो उससे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। तो आई थिंक आपके माध्यम से ये हमें बिल्कुल साफ कहना चाहिए, जैसे डॉक्टर संजीव साहब ने भी बताया अभी, कि अगर आपको कोवैक्सीन लगा है तो कोशिश करके 4 हफ्ते के अंदर प्रेफरली 4 to 5 वीक्स में लगवा लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर इसकी एफिकेसी टेस्ट की गई। और आपका कोविशील्ड है, जो गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, गाइडलाइंस, उसको आप फॉलो करते रहिए, उसमें वेरिएशन है। और ये जो 4 से 6 हफ्ते नहीं लगा, जब आपको वैक्सीन नहीं मिला था, कोविशील्ड का जब ट्रायल चल रहा था ब्राजील के अंदर, इंग्लैंड के अंदर या साउथ अफ्रीका के अंदर, ये डाटा उसी से छन के निकल के आया कि जब किसी कारण से लॉजिस्टिकली डिले दिया गया तो उसके अंदर उन्होंने ये पाया कि जो ओरिजिनल स्ट्रेन था, जब उसके अगेंस्ट यूज किया तो उसकी आपकी इम्यूनोजेनिसिटी बेटर थी। तो इसलिए वो प्रोग्राम्स चेंज किए गए। कोवैक्सीन के अंदर जब हमने ट्रायल शुरू किया, डॉक्टर संजीव भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, पहले शुरू के ट्रायल हमने 2 हफ्ते पे दिए थे फर्स्ट उसके अंदर, और उसके बाद जब उन्होंने डाटा एनालाइज किया 4 हफ्ते का फेज 2 में, तो ये पाया गया कि जब आप 4 हफ्ते पे देते हैं तो 98% लोगों में एंटीबॉडीज बन जाती है, और जब आपने 2 हफ्ते पे दिया तो उसमें 92% था। तो वो डाटा, क्योंकि डॉक्टर संजीव वहां से देख रहे हैं और रोहतक में हम लोग कर रहे थे, तो ये उसके हिसाब से डाटा है। लेकिन मेरी सबसे आपके माध्यम से दोबारा से गुजारिश है कि कोवैक्सीन को कोशिश करके 4 हफ्ते में लीजिए। जो दिक्कत आई है लोगों को वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन की आई है, तो उसके अंदर भी जितनी जल्दी वैक्सीन हो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, प्रेफरेबली विद इन 6 वीक्स होना चाहिए। और मेरी जो हम पॉलिसी प्लानर्स हैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट है, जैसे हम किसी आदमी को तपेदिक के अंदर दवाई देते हैं, ART देते हैं, तो 6 महीने की उसकी रखते हैं। इसी तरह स्पुतनिक में आ रहा है कि आपका एक आदमी के लिए 2 वैक्सीन आ रहे हैं, आपका हरा होगा, लाल होगा, रंग डिफरेंट होगा। तो इसी तरह से अगर हम किसी को वैक्सीन दे रहे हैं, हम ये इंश्योर करके रखें कि अगर हमने 100 आदमियों को वैक्सीन दिया है तो कोवैक्सीन इन पर्टिकुलर, उसके लिए हमारे पास सेकेंड डोज की अवेलेबिलिटी रहे, ताकि हमारी जो वैक्सीनेशन प्रणाली है उसकी एफिकेसी बनी रहे। ये एक अच्छा सुझाव है। जी, एब्सोल्युटली। और 2 बातें साफ हो रही हैं। एक तो ये कि सेकेंड डोज जो है वो बूस्टर के तौर पर काम करता है जी। दूसरी बात ये कि अगर 4 से 6 महीने के अंदर आप नहीं भी लगवा पाते हैं किसी भी वजह से, 4 हफ्ते, हाँ 4-6 हफ्ते के बीच, तो 4-6 हफ्ते के बीच अगर आप नहीं लगवा सकते हैं तो उसके बाद लगवाने के बाद, जो आपने कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछा है, तो वैसा कोई साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जो एंटीबॉडी बनती है उसकी मात्रा थोड़ी कम रह सकती है। So the suggestions that our doctors are giving is that please follow the suggested guidelines. Take Covaxin within at 4 weeks or between 4 and 6 weeks, and Covishield का स्टिपुलेटेड क्या मेरे ख्याल 8 से 12 ना जी? अभी फिलहाल कोविशील्ड का 12 से 16 है। डॉक्टर्स कैन कम इन। डॉक्टर संजीव कुमार, कोविशील्ड का अभी 12 से 16 हफ्ते है। 12 से 16 हफ्ते जी, तो 3 महीने से 4 महीने तक जी आप ये टाइमलाइन। लेकिन जैसा डॉक्टर ध्रुव ने बताया कि ये गाइडलाइंस चेंज हो रहे हैं,
जैसे जैसे हमारी एक्सपीरियंस बढ़ रही है या दुनिया के दूसरे देशों में रिसर्च हो रहे हैं, तो लोग जरूर नजर रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके गाइडलाइंस पर ध्यान रखें। अगर ये कुछ चेंज करते हैं तो उसको फॉलो करें। लेकिन राइट नाउ अभी 12 से 16 हफ्ते के बीच में कोविशील्ड की दूसरी डोज लेनी है। जी, तो आप ये टाइमलाइंस फॉलो करें, आप ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी, क्योंकि जैसे डॉक्टर चौधरी कह रहे थे कि ये बहुत नई बीमारी है, डेटा उतना नहीं है, तो मेडिकल फ्रेटर्निटी भी इसको स्टडी कर रही है। बट जैसे डेटा आता है, आपकी नॉलेज बेस बढ़ता है और आप डेफिनेटिवली कुछ कह पाते हैं उस पर। प्रोफेसर चौधरी, मैं इस पे एक आपसे सवाल पूछ लेता हूँ जी। इफ़ द नेचुरल infection gives me an immunity for 3 months, how are the companies claiming that they'll immune me or give me immunity for 9 to 12 months? You see, again I am saying there's a lot of mixing of science, policy, politics and economics. And that is why we are seeing, and that's what you started with the saying, as per the WhatsApp University. Now, what is happening is, if you really ask me, the best robust data which we are getting actually as of today, it is coming from your public health England. I think we have to learn from them how to do it and follow it up. And there it has been showing that they released the data of 9 months, natural immunity is holding on. And 10 to 12% is the maximum reinfection rates. If you look at the data today, of your vaccination also, the breakpoints, in spite of that, with the new variants coming up, was much higher. Now they are very transparent, they are open, they are telling us. Now, in this case, if you really ask me, a person who has got a disease, I know a large number of people who had disease last year, they have not got it. And some of them, even the people we know who had vaccinated, they have got the disease. Therefore, to claim that vaccination only is one, and a person who has got a disease is likely, and who has a robust disease, clinically he has a moderate to severe disease and has a good antibody, will not be protected, I think is jumping the gun. In simple language, I will say is that people are well protected who have been vaccinated. In fact, one thought among scientists today is that people who have got the illness in the past, and if the data shows that they have a robust illness, they have only 10 to 12% reinfectivity rate. If we know it, probably we can delay their vaccination so that we can use that particular vaccine to vaccinate the people who are unvaccinated and who did not get the disease in the past. Therefore, the claims of companies are claiming that it is going to give lifelong natural immunity, I think they are false. In fact, large number of them have now started talking in terms of booster dosing being given. Now, therefore, I think we need to follow the science. Science says if you have a disease, you will have it. If there comes a variation in the strain, probably it will hold, or if the disease will happen to the people who are infected, probably will be less severe. This is the standard data which we are seeing, which we are following it up. We need to follow it up in this disease also. And let's hope and see what data comes up, what the science tells us, that we need to follow up. Because again, I'm reiterating that everything is happening so fast and everything is running parallel. We are asking the answers which we have been answering over 5 to 10 years. So it is important for us to have a patience. We cannot answer everything right now on the spot. Only time will tell whether what we thought was right or wrong. You look at the vaccination dosing, the way it is changing the duration. Because as the data is coming up, we are knowing it. Initially we said, let's not vaccinate lactating women or a pregnant woman. Now you see how it is changing. So let us see. Answers are coming up. They may be a little slow. We can't. It's like an instant noodle that we will get it. And again, everybody has a different genetic material, and we are trying to put Jack in one model to everybody. And science is non-linear. I think when we do it, we need to talk as a scientist, and then yes, policy decision you take it looking at the general good. Individuals variations will take place. बिल्कुल, आपने सही बात कही और पूरा एक्सप्लेन करके कही, लेकिन एक बात यह है कि कोई भी कंपनी अभी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी की बात नहीं कर रही है। उनका अपना जो कहना है वो
उसी हिसाब से इस साल भर या बूस्टर डोज की बात कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंदौर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। मेवाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मेरी पहली डोज कोविशील्ड की लगी थी जी, उसके बाद दूसरी डोज 35 दिन बाद लग गई थी 10 मई को। कोविशील्ड की? जी जी। अच्छा, कोविशील्ड पहला डोज लगा था, पर ये दूसरा डोज 35 दिन बाद लगा है। ठीक है, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? बाद में ये गाइडलाइंस आई कि 12 से 16 हफ्ते। जी मैं समझ गया आपके सवाल को। डॉक्टर वार्ष्णेय, डॉक्टर वार्ष्णेय बिल्कुल बताएं। और ये चिंता जो है, इनका ये कहना ठीक है, जो इनिशियल गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के लिए जो सेकंड डोज थी वो 6 से 8 वीक के बीच में, आज में जो है गवर्नमेंट ने गाइडलाइन रिवाइज करके उसको 12 से 16 हफ्ते का, तो जो गाइडलाइन के हिसाब से लगा है। अब ये देखिए काफी स्टडी होती रही इंग्लैंड में, क्योंकि ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो बेसिकली एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है। और इंग्लैंड में जब शुरू में उन्होंने जब वैक्सीन डेवलप की थी तो उन्होंने डिफरेंट लेवल पे जो डिफरेंट इंटरवल पे सेकंड डोज दी, 4 वीक्स पे, 8 वीक्स पे, 12 वीक्स पे। और उस समय उन्होंने ये पाया था कि इसकी एंटीबॉडी जो है 12 वीक्स पे सबसे ज्यादा अच्छी बन गई, 8 वीक्स पे उससे कम बनती है और 4 वीक पे उससे कम बनती। तो उन्होंने जो गाइडलाइन शुरू में दी थी वो यही दी थी 12 वीक पे। परंतु डिफरेंट तरीके की गाइडलाइंस आती रही। जो हमारा एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट का वो अलग था, इसलिए शुरू की जो गाइडलाइंस है उसमें 6 से 8 हफ्ते रखा गया, बाद में रिवाइज किया। और ये गाइडलाइन अभी भी देखिए रिवाइज हो सकती है जिस तरीके, क्योंकि देखिए जितनी भी वैक्सीन सिस्टम है सबको इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया गया, सारी गवर्नमेंट द्वारा भी और WHO भी द्वारा भी, जिन वैक्सीन को दिया गया है और प्रोसेस में। तो इसलिए वी विल कंटिन्यू टू लर्न how the vaccine will behave, what should be the ideal booster dose timing, what should be the ideal dose for the person who have already been infected. So this will go on coming, but he has taken at the right vaccine and he should not worry. सर इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इनके जो श्रोताओं ने पूछा, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए, आपको ठीक टाइम पे लग गया। क्योंकि आपने ये अखबार में पढ़ा होगा, बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि वेरिएंट के कारण पहले लगना चाहिए बाद में लगना चाहिए। अगर आपका मैं लगता हूं तो आपको 5 हफ्ते पे लगा है, आप खुशकिस्मत है, बढ़िया है, आप मौज करिए। बिल्कुल, तो चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह की चिंता साइड इफेक्ट वगैरह की बिल्कुल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि जो कोरोना वैक्सीन लगने के बाद जो एंटीबॉडी बनती है उसकी मात्रा में थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा चिंता की कोई बात आपके लिए नहीं है। पर इनका तो बिल्कुल टाइम पे ही लग गया, जैसे प्रोफेसर चौधरी इन्होंने 33 दिन बोला है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो नई गाइडलाइन आई उसमें क्योंकि उसको टाइम को बढ़ाया गया, इन्होंने 33 दिन में लगवा ली, तो इस पर क्या असर पड़ेगा? तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि एंटीबॉडी की मात्रा थोड़ी कम या ज्यादा बने, इससे ज्यादा। मैं इसमें देखिए, एंटीबॉडी एक मिस्टेकन आइडेंटिटी है कि सिर्फ वही प्रोटेक्ट करती है जी। हमारे को अब इम्यूनिटी को समझने की बहुत जरूरत है वैक्सीनेशन में। और मैं डॉक्टर गुलेरिया की बात ही रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज द टाइम नाउ फॉर वैक्सीनोलॉजी, जो एक ये हमारा पूरा साल चल रहा है जी। और इसके अंदर भी हमको ये देखना है कि वो ओरिजिनल स्ट्रेन के अगेंस्ट था, वेरिएंट स्ट्रेन के अंदर एफिकेसी क्या, बिकॉज आप एक तरह का नया उसके अंदर चाल चलन चरित्र आपका वायरस का बदल जाता है, तो उसके ऊपर आपको वो कैसे काम करती है। तो मैं इन श्रोताओं को जिनको कह रहा हूं कि जिनको पहले लग गई है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वैक्सीन आपको लगा है। और एक चीज और मान के चली कि क्लिनिकल मेडिसिन में जब भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस होते हैं वो आपके बूस्टर की तरह काम करते हैं जी। तो इसलिए निश्चिंत होके अपना आप काम करिए, लेकिन हाँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जरूर फॉलो करें। बिल्कुल। डॉक्टर संजीव कुमार जी, आपके लिए एक सवाल है। फेसबुक पर संजीव दास जी पूछ रहे हैं कि क्या जो कोरोना पेशेंट रिकवर हो जाते हैं तो क्या रिकवरी के बाद भी वो कोरोना वायरस को कैरी करते हैं क्या? उनके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि कब उनको वैक्सीन लेनी चाहिए। तो इस पर तो हम जवाब दे चुके हैं, लेकिन सवाल के पहले हिस्से पर जवाब चाहूंगा कि क्या कोरोना को रिकवर करके जो पेशेंट आते हैं वो वायरस कैरी करते हैं? मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन शायद इसलिए पूछा जा रहा है कि कई लोग जो रिकवर कर चुके हैं, जिनको अस्पताल से छुट्टी दी जाती है कि आपकी सिम्टम्स खत्म हो गई, आपकी रिकवरी होगी चाहिए, वो भी अगर RT-PCR टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो ये गलतफहमी हो जाती है ये लोगों को, शंका कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अभी तक इन्फेक्टेड हैं
या वायरस अभी तक मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसका कहना है कि वायरस आपके शरीर में रह सकता है, लेकिन ये जो पॉजिटिव आती है वो ज्यादातर होता है कि ये वायरस हम सब जानते हैं कि आरएनए कैरी करती है इस वायरस को। तो ब्रोकन आरएनए जो रहते हैं वो मौजूद रहते हैं, वो शायद कई हफ्तों और कई महीनों तक रह सकते हैं आपके शरीर और आपकी टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आप में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। ये शुरू में ये बड़ी इस पर चर्चा हुई थी और बड़े इस पे खोज हुए थे, बड़े ट्रायल्स हुए थे कि कितने दिन तक वायरस इन्फेक्ट कर सकता है अगर हम ठीक हो जाते हैं तुरंत। तो शुरू में ये बात आई थी कि बॉडी फ्लूइड्स में ये सिक्रेट्स कर सकता है, सिक्रेशन होती है इसकी, और ये 38 दिनों तक इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे अभी यही है कि 3 हफ्ते तक ये आपके शरीर में अगर आप में सिम्टम है तो इन्फेक्ट कर सकता है। अगर आपकी सिम्टम खत्म हो गई और आपको सिम्टम शुरू हुए या पॉजिटिव आए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए तो ये अगर पॉजिटिव आता भी है तो ये इन्फेक्टिव नहीं हो सकता। इससे उस शरीर से दूसरे लोगों को प्रसार नहीं होगा, वायरस नहीं फैलेगा। Okay. Professor Chaudhary, let's talk about this, the new variant coming in called the Delta Plus strain. The government yesterday, the health secretary called it a variant of concern. There are about 40 cases reported so far, only in the states of Maharashtra, Kerala and Madhya Pradesh. How concerned should we be about this new variant? And also people have a lot of concerns that are the existing vaccines adequate to deal with this new mutant? वो हिंदी में जो कहावत है ना कि दूध का जला हर चीज को फूंक मार मार के पीता है, तो वही वाली चीज आपके यहाँ पे हो रही है। इस समय देखिए वायरस हम कब कहते हैं कि ये आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न हम मोटी मोटी बात ये लेके चलते हैं, कोई वायरसेस हैं म्यूटेट करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और उसके अंदर 3 चीजें हमें देखनी होती हैं कि इन्फेक्टिविटी कितनी है, क्या विरुलेंस ज्यादा है, क्या हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और कितनी रैपिडली से स्प्रेड कर रहा है, जो कि पहली चीज से है। और आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी साहब ने कहा, हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने, आई थिंक बिल्कुल एक लाजमी बात है, रिस्पॉन्स है जो हमारा करना चाहिए ताकि हमारी तैयारी पूरी रहे। उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन वायरेंट ऑफ कंसर्न करने के लिए हमें, अगेन मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, हमें जैसे आपको बताया 3-4 चीजें देखनी है। ये जो स्ट्रेन है डेल्टा प्लस, ये K417N है या जिसको AY.1 हम बोल रहे हैं, और ये सारा सबसे पहले महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो रत्नागिरी के अंदर मिला, जहाँ 13% से कम अभी इन्फेक्टिविटी रेट नहीं आ रहा है। और यहाँ से ये आपने केरला में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी आ रहा है। नाउ हमको ये देखना पड़ेगा अब इसके अंदर कि 40 केसेस आए हैं, वर्ल्ड में और जगह भी मिला है। अब ये जो 417 स्ट्रेन का जो म्यूटेशन है, अगर आप ध्यान दें तो ये वो वाला म्यूटेशन है जो कि हमको आपका अपना बीटा और गामा में मिल रहा है। अल्फा स्ट्रेन इज ए केंट स्ट्रेन, बीटा स्ट्रेन जो हम देख रहे हैं ये साउथ अफ्रीका स्ट्रेन है, जो आपका गामा स्ट्रेन है ये ब्राजील का स्ट्रेन है, और डेल्टा जो हमारे यहाँ पे वेरिएंट मिला, उसके अंदर ये एडिशनल स्पाइक प्रोटीन पे चेंज है। उसके कारण आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका उसके अंदर दिक्कत हुई। तो इसलिए ये लाजमी सवाल पूछना बनता है। तो मैं यहाँ पे हमारे कुछ एक सीनियर कोलीग्स को कोट करूंगा, जिसके अंदर ये है कि वी नीड टू बी केयरफुल, वी नीड टू बी वॉचफुल। नाउ if when you are careful and watchful, what we are trying to look at it, whether it will spread faster than the Delta strain, then it will be cause for concern for me. If it is causing more virulence, if it is causing more hospitalization, more death, it will be cause of spread for me. But from the public policy perspective, because it is a new strain, it is a new variation which we are seeing, we need to follow it up very closely so that we don't burn our fingers again. From that perspective, yes, it is a strain of concern for us. As far as the management is concerned, nothing is going to change. Similarly, vaccination status, when we are looking at it, already we know Covishield data is in the public sphere. The Public Health England again has put it up that when you give one shot, it is 33% protected against the Delta strain I am talking of. Now, which has become the major strain now
in England. And along with it, when you give 2 shots of Covishield, it becomes nearly 65% or 61 or 65% efficacy, which is there. Therefore, it is important for us to realize is that whether this strain is, whether I may repeating again, if it grows faster, replaces the old Delta strain, causes more admission, yes, then I have to be very, very careful. But nevertheless, I need also to know this, follow it up with doing more and more sequencing in the people who are symptomatic, who are coming to us with new symptoms, especially when the lockdown is up. If we find that this is replacing the previous Delta strain, then for me, it will be a strain of concern. And sir, of the available knowledge right now, are the existing vaccines in India effective against the new strain? I think so. You see, I give you my example. I had a mild COVID last year. I had been vaccinated. Again, I had a second time the COVID, and probably I had a Delta variant. But the difference what has happened is, you see, you must remember 2 things. There is no vaccine developed till now which gives us sterilizing immunity. It simply means no vaccine till date prevents infection. What is important is क्या infection से आपको बीमारी होगी कि नहीं होगी, और जो बीमारी होगी, how much severe it will be. These are the 2 questions which are important. And what we are finding is the vaccines which we are using, whether it is Covishield or Covaxin, we are finding it up that both are effective. Both are effective against in a significant prevention. Covaxin data is 78%. And remember one thing in phase 3, Dr. Sanjeev will bear with me, is that large number of cases, clinical cases, actually they have detected at the time when variants were there, and not that it was the initial one. So when they come up with the 78% or 77.8% efficacy, that means it has been able to prevent the disease in significant number of cases. Similarly, they are saying that it has 100% prevented against the death which has come in the public domain. Even if it is not 100%, I say, let us say it is 97, 98%, and your hospitalization rates are reduced. I think it's a great success. Same thing we are seeing with the Covishield data, which has come from CMC Vellore, which also AIIMS has come up. Similarly, we are seeing it at Chandigarh PGI data, which has published now in Mayo Proceeding, which is in a public domain. So vaccines are working, no doubt about it. And they're not only working in terms of reducing the infection rate, but also at the same time reducing the complication and severity of the disease. That is why we are saying, please go ahead, take vaccination, and that is the one way to stop the spread of this disease. बिल्कुल, डेल्टा प्लस पर हम लोग और भी आगे चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, अब्दुल बारी साहब। अब्दुल बारी साहब, खैर मकदम है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार साहब, मैंने जो है कोविशील्ड वैक्सीन ली है 9 जून को जी। मुझे सेकेंड सितंबर से 28 सितंबर बताया हो। तो मैं जो है यूएस जाना चाह रहा हूँ, मेरे बच्चे की शादी है अगस्त में। तो अगर फ्लाइट्स खुल गए तो मैं जाऊँ तो मैं 33 डेज के बाद सेकेंड डोज ले सकता हूँ? Dr. Varshney, would you like to take that, please? ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर किसी ने फर्स्ट डोज कोविशील्ड के लिए और उसको कोई इंफेक्शन इन बिटवीन नहीं हुआ, तो सेकंड डोज उसको 12 से 16 वीक के बीच में लेनी है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट गाइडलाइन। अगर उसको कोई अनफॉर्चुनेटली इंफेक्शन हो गया, कोरोना इंफेक्शन हो गया, तो उस इंफेक्शन से रिकवर होने के 3 महीने बाद। बिल्कुल। देखिए, इनका सवाल वो वाला है जो आज के दिन हमारे कई स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, उसमें हर देश की हर जगह की गाइडलाइंस डिफरेंट है। और यूएसए के अंदर जितनी मेरी जानकारी है कि जिनको वैक्सीन नहीं लगा वो वहाँ पे दे आर गिविंग इन द कॉलेजेस वन। इनका जो वसीम साहब ने पूछा कि इनके बच्चे की शादी है जिसके लिए अटेंड करना चाहते हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा उसमें जरूर गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन चेंज की है, और उसमें उन्होंने कहा कि जो सेकंड डोज है वो 4 वीक के बाद ली जा सकती है। अगर इसी बात पे आ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, अब वही मैं ऐड कर रहा था कि उसके अंदर आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन दिखा के बच्चे की शादी है करके, और आपका जो लोकल सिविल सर्जन ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है जो हेल्थ का, वहां आप जाइए तो वो आपकी उसके हिसाब से
they will act on it. गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है. They have tried to make things simple for our citizenry. और उसके अंदर जो बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या किसी को आपातकाल में जाना है, रिक्वायरमेंट है, मैंडेशन है, तो उसके अंदर एक प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेशन का दिया है. चलिए अब डेल्टा प्लस पर डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं. डॉक्टर संजीव कुमार, डेल्टा प्लस के अभी तक हालांकि सिर्फ 40 मामले अभी तक सामने आए हैं भारत में, लेकिन अगर उसके लक्षणों की बात करें, क्या उसका कुछ खास लक्षण अभी तक सामने आया है क्या? या फिर फैलाव के बारे में अगर बात करें, हमने देखा था कि जो दूसरी लहर आई थी उस दरमियान जो वायरस का वो फॉर्म था उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और वो बड़ी तेज़ी से फैला. डेल्टा प्लस के बारे में अभी इस तरह की कोई अध्ययन, इस तरह की कोई रिपोर्ट है कि उसका क्या नेचर है, उसके क्या कुछ अलग सिम्टम हैं, क्या उसके फैलाव की दर ज़्यादा है, कम है, सामान्य है, इस तरह का कुछ सामने आया है अभी तक? नहीं, डेल्टा प्लस जैसा कि ये मालूम है, सब जान रहे हैं कि ये जो वायरस है ये बहुत जल्दी म्यूटेट करता है और कई बार म्यूटेट कर सकता है. तो ये जो म्यूटेशन का नया रूप जो इंडिया के वायरस है, जो इंडियन वायरस बोल रहा है, ये डेल्टा प्लस, ये अभी देश के कुछ ही क्षेत्रों में आया है. जैसे कि डॉक्टर चौधरी ने बताया कि महाराष्ट्र और कोस्टल एरिया में और कुछ मध्य प्रदेश में. तो पहले भी ये वायरस म्यूटेट कर चुका है. तो म्यूटेशन में जो लक्षण होते हैं उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते. वो सिम्टम्स जो है जो वैसे ही रहेंगे, बुखार, खांसी, कमजोरी और कुछ नए सिम्टम ऐड होते हैं, जैसे रिसेंट पेट में खराबी होना या आंखों का सिम्टम. तो इस तरह के सिम्टम्स वही रहेंगे, कुछ चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाँ जो इन्फेक्टिविटी होती है, जो कितनी तेजी से फैलता है, इसमें कुछ चेंज आता है. जैसे सेकेंड फेज का जो वायरस था उसमें इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा थी, बहुत तेजी से फैला और बहुत तेजी से कम भी हुआ. डेल्टा प्लस के बारे में अभी बहुत सारे अभी डाटा आना बाकी है. जो स्टैटिस्टिक है ये कि 40 के आसपास केस आपने सही बताया देश में हुए हैं. डेल्टा वेरिएंट इंग्लैंड में आया है. तो डेल्टा वेरिएंट जो था उसमें इन्फेक्टिविटी में भी और सीवियरिटी में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं था. डेल्टा प्लस को वॉच करना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है इसका आंसर कुछ दिन के बाद आए, कि जो हम लोग ये सोच रहे थे कि जो पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं होगा, जैसे कि चिल्ड्रन 18 साल से कम, तो हो सकता है वो ज्यादा इन्फेक्टेड हो. क्योंकि वायरस जो होता है, वायरस हमेशा अपना होस्ट खोजता है. हमेशा ये देखा जाता है कि वायरस कभी नहीं चाहता है कि उसका होस्ट मॉर्बिडिटी तो हो लेकिन पूरा खत्म नहीं हो जाए, नहीं तो फिर वो कहां सर्वाइव करेगा, और वो नए होस्ट तलाशता रहता है. तो ये डेल्टा प्लस बच्चों में ज्यादा होगा या फिर वही और जो स्वस्थ लोग बचे हैं उनकी तरफ जाएगा, ये थोड़ा समय बताएगा, ये हमें देखना है. लेकिन सिम्टम में और सीवियरिटी में कोई डिफरेंस नहीं है. और ज्यादा चांस है कि जैसा कि डॉक्टर चौधरी ने बहुत क्लियर कहा कि ये जो वैक्सीन है हमारे, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों डिफरेंट वेरिएंट्स म्यूटेशन के अगेंस्ट भी काम करने के अच्छा काम करते हैं, ऐसी डाटा है. तो उम्मीद है कि जो हमारे वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन रहेंगे वो भी डेल्टा वेरिएंट्स के अगेंस्ट में सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे. Okay. We are totally out of time. I'll quickly take Mantosh Chaudhary's question. He asked this question on our Facebook page. It's a long question. Basically, he's trying to say my D dimer. Okay, he's saying if his D dimer is high, can he take the vaccine? Will it result in any complications? Dr. Varshney, please. Whether he has got the D dimer, whether he was infected with the COVID and continuous inflammation is going, then he must take because generally D dimer shows the coagulability, hypercoagulability of the blood, and we give the blood thinner, anticoagulant for such person. But what is the total history, why he got the D dimer and all that? I think the physician concerned who was treating will be best to answer. Okay. All right. So hope Mantosh Chaudhary, your question is answered. We'll have to leave it there. I'd like to thank all our guests, Professor Dhruv Chaudhary, Dr. Sanjeev Kumar, and Professor A.K. Varshney. Many thanks for being on the show and sharing your insights with us. Thank you. And yes, जी बिल्कुल, हमने डेल्टा प्लस के बारे में जो न्यू वेरिएंट है उसके बारे में भी बात की, और जो दर्शकों के तमाम सवाल हैं, ख़ास तौर पर देखिए अभी जो चिंता है दूसरी लहर के गुजर जाने के बाद, अभी ज़्यादातर सवाल वैक्सीनेशन को लेकर के हैं. तो वैक्सीनेशन को लेकर के हमने
काफ़ी चर्चा की और हमारे विशेषज्ञों ने जवाब भी दिया। आगे भी जो कुछ भी इस तरह के सवाल आपके मन में हैं और जो सवाल हम आज नहीं ले पाए, तो आप तो जानते हैं कि रोज़ यह कार्यक्रम होता है, तो अपने सवाल लेकर के फिर से आइएगा और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को शामिल करें और अपने विशेषज्ञों से उसका जवाब। तब तक आप सेफ रहें, मास्क ज़रूर लगाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर फॉलो करें। देखें, ये जो सेकेंड वेव, थर्ड वेव एट्सेट्रा कह रहे हैं, इसको डिफीट करने के दो ही तरीके हैं। एक तो आप एलिजिबल हैं तो वैक्सीन लगवा लें, आप रिलेटिवली सेफ रहते हैं उससे, और दूसरी बात मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने हाथ धोते रहें। अगर हम लोग ये सब कर लेंगे तो वील बी रिलेटिवली सेफ। वेल, दैट्स इट इन द शो। बिल्कुल, और कोशिश करें कि तीसरी लहर को बिल्कुल आने ही नहीं दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और इसी के साथ डॉक्टर स्पीक के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।